Hello everyone. Today I am going to discuss the next topic of bills of exchange. In my previous basic class, we discussed about some theory related topic related with bills of exchange. In this class, we first of all remember the previous class, then we extend this class to the next level. Okay, so first of all, according to the Indian Negotiable Instrument Act, DROI has a legal right, okay, for days of grace. This is under Indian Negotiable Instrument Act. DROI has a legal right of the days of grace. Okay, that's why 3 days grace is given to the debtor to pay the amount of the bill after the due date. 3 days grace is not allowed if the bill is payable on demand. Remember, I repeat that line. 3 days grace is not allowed if the bill is payable on demand. Grace is given only if the bill is payable on due date. Now the question, if the date of payment falls on public holiday, sir, what happened? If the date of payment falls on public holiday, in such a case, date of payment will be the next preceding business day. Okay. If maturity date of bill falls on 29 February, I repeat 29 February, okay. We know in leap year 29 February will be there. 29 February. In such a case, the due date of the bill will be on 28 February. If in case of dishonor of a bill, noting charges will be paid. Now, what is the meaning of that word dishonor of a bill? What is the meaning of that word noting charges? I will tell you in my next class. In case of dishonor of a bill or noting charges will be paid by the party responsible for dishonor. If this changes or if these charges paid to the notary by the drawer or holder of the bill, it can be recovered from the acceptor. Okay, here acceptor means DROI. You always remember that. I repeat that previous class, that acceptor means DROI, because ultimately he is responsible for the dishonor of a bill. तो DROI तो सब कुछ करता है ना, अगर पैसा नहीं देगा तो ऑब्वियसली डिसऑनर होगा, तो डिसऑनर के लिए ही ये बात आया है. सो अभी तुम लोगों के साथ एक पेज में शेयर कर रहा हूं. इसमें लिखा है, देखो, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी. दिस इज द टॉपिक 1. दिस इज द टॉपिक 1. ओके, सो व्हेन द बिल आर सोल्ड, तब क्या होगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. हियर बी मीन्स ए गुड्स, सेल्स गुड्स टू बी. हम लोग पकड़ लेते हैं कि ए बी को कुछ सेल किया है, तो इस समय तो ड्रायर कौन होगा और ड्रॉई कौन होगा? उस समय ड्रायर होगा ए और ड्रॉई होगा बी. तो ड्रायर के घर में क्या होगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू ए इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई. इसके बाद अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस हो गया है. उस समय क्या होगा? उस समय बिल्स इशूएबल अकाउंट डेबिट टू बी और ड्रॉई के घर में होगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. नेक्स्ट है व्हेन कैश इज रिसीव्ड. उस समय होगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स इशूएबल अकाउंट एंड ड्रॉई के घर में होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू. यार बीपी मीन्स व्हाट? बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर नहीं है. बीपी मीन्स क्या है? बीपी मीन्स बिल्स पेएबल है, याद रखना, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ओके, सो तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया. ये कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे अभी. ठीक है, तो इलस्ट्रेशन एक मैंने लिया है, तो अच्छी तरह से देख लेना. इसमें मैंने
ऑलरेडी बोला है इलस्ट्रेशन 1 में, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई worth ₹1,000 and X drew a bill of exchange on Y. Here X retained the bill with him till maturity. On the due date, bill was honored. Past necessary journal entries in the books of Y and X and Y. ठीक है, so इसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन का. तो हम लोगों को पहले ड्रॉयर कौन है और ड्रॉई कौन है उस क्वेश्चन से ये पता करना है. देखो अच्छी तरह से देखो, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ₹1,000. इसको अगर अच्छी तरह से देखोगे तो अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगा. ये अच्छी तरह से अगर देखोगे, एक्स ने वाई को सोल्ड किया, यानी एक्स एक आदमी है जो वाई को सोल्ड किया है. क्या सोल्ड किया है? कुछ चीज सोल्व किया है, उसके बदले में वाई क्या देगा? पैसा देगा. सो वाई अगर पैसा देगा तो एक्स कौन है और वाई कौन है? किसी ने अगर कोई चीज सोल्ड किया है तो एक्स है इसमें ड्रॉयर एंड वाई है ड्रॉई, बिकॉज वाई पैसा देगा, वाई रिसीव कर रहा है वो जो भी सामान बेच रहा है. तो हम लोग ऐसे समझेंगे कौन है ड्रॉयर कौन है ड्रॉई. और एक्स ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई, इसमें भी लिखा है ये चीज. तो पहले तो सोल्ड जो हुआ है वो सोल्ड का एंट्री हम लोग देते हैं ड्रॉयर के घर में और ड्रॉई के घर में. ये जर्नल एंट्री होगा. ठीक है, पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स जर्नल एंट्रीज, डेट पार्टिकुलर्स, LF amount, date particulars, LF amount. Yoga in the books of Y. Okay, journal entries. पहला जो एंट्री होगा इसमें क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट एंट्री में हम लोग लिखेंगे, देखो इसमें क्या लिखा है, एक्स सोल्ड गोज टू वाई. तो यू टू राइट वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000 being goods sold on credit. ठीक वही चीज हम लोग ड्रॉई के घर में लिखेंगे अलग नाम से. उस समय ड्रॉई क्या कर रहा है? ड्रॉई तो परचेज कर रहा है ना. परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना है अमाउंट? 1,000 being goods purchased from X. ओके, नेक्स्ट जो एंट्री है वो क्या है? देखो अच्छी तरह से देखो, नेक्स्ट है एंट्री है एक्स ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई. एक्स रिटेन द बिल विथ हिम टिल मैच्योरिटी. ये ड्रू हुआ है ना बिल. अगर बिल ड्रू हुआ है तो व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसिप्ट. सो इसका लिए एंट्री क्या होगा? ड्रॉयर के घर में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइस अकाउंट. ओके, सो इसमें लिखेंगे हम लोग बीइंग एक्सेप्टेंस रिसिप्ट. कितना है वैल्यू? 1,000.
ड्रॉ के घर में होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, वो वैल्यू होगा 1000, उसमें हम लोग लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस इज गिवन। ओके, तो ये लिख लिया हम लोगों ने। सो इसके बाद लास्ट जो एंट्री होगा वो क्या होगा, ऑन ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड एंड पास नेचर जनरल। ड्यू डेट में पैसा दे दिया, किसने, किसको, वाई ने एक्स को। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना है अमाउंट, 1000 बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, और ड्रॉ के घर में क्या होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है अमाउंट, 1000 बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। ओके, 1000 लिखेंगे हम लोग, हो गया ये चीज। सो यही चीज हम लोग याद रखेंगे, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द रेट ऑफ मेच्योरिटी, तभी 3 जर्नल हम लोगों को लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो जर्नल 2 भी हो सकता है, तो ये हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एडवांस लेवल में जाएंगे, तो ये एडवांस लेवल में जब जाएंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कौन सा चीज़ आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।